switched into service. And also there were grills, I think, which also made it a bit difficult for the people to escape immediately. Okay, I'll come back to you. Let's quickly go on ground for another perspective. My colleagues Devika and Brian are reporting from ground zero, taking us through the details, of course, of this place where the tragedy struck, and getting us a sense of what eyewitnesses on ground also are telling us about not just this particular building, but the entire area and the blatant illegalities there. Devika and Brian, what can you share with us? What more, reports are you getting from witnesses and locals there? Well, viewers, we're back on the ground. This time we're at a different angle. And we're doing this exercise so that all of you can see how some of the suggestions and other things that are being made now on television by experts may not have even prevented this fire, because look at the condition of this building that was operating illegally. Right here is the frontal facade of Flourish Bread and breakfast and bed stay, and you can see the entire building now from this angle completely engulfed in smoke. This is the aftermath of this blaze in the morning that has taken 21 innocent lives. Right next to it is another inn called Mikasa Inn, and you can see that the fire had almost spread to this side as well. But look at how intensely narrow the buildings are. We've been told that right here was the single entry and exit point for this particular Flourish B&B, and that had an automated lock system which ended up malfunctioning as soon as the building caught fire, and it completely locked everyone in. I'm now going to take you through some of the other areas as well. Look at, I'm just going to ask my cameraman, ye dikhaiye. Look at how narrow the entrance is to something known as Lemon Greens at the back. It seems like it's one of the entrances, but how does one even operate in this narrowness is what makes this entire tragedy really a wake-up call. And now Brian is with us on the broadcast. Brian, you've been tracking this since morning. What is the one common thing that all eyewitnesses have told you, Brian, since morning? So clearly, I mean, we've spoken to a couple of eyewitnesses since morning, and they've been flagging off that first being the buildings being unauthorized. So most of the buildings here in Maulvi Nagar, they have NOCs for 8 rooms. Suppose if a hotel has 25, 28 rooms, the NOC is just there for 8 rooms, and the rest 25 rooms, they do not have any authority, no NOCs there. So most of them are unauthorized itself, which makes it very difficult. And most of these buildings are unauthorized, especially the building that actually caught fire. This building per se had basement plus 4. Apparently they got a permission from basement plus 4, but they had more additional 2 floors, which is 6 floors, which is very alarming at this point of time. 6 additional floors, and what we're now learning is that because this blaze has happened, and obviously you'll have some of the authorities now coming into these lanes to also check, because of course we only wake up when tragedy strikes. So what we're learning is that some of the other B&Bs that have been operating illegally have actually started taking off some of their name boards, is what some of the people, locals here, residing have told us. And Brian, right here, remember viewers, some of the first responders were smart enough. There was a Gadda shop right here, and they had run in and they had picked up some of these Gaddas to put on the floor for the people to jump off. And people have jumped from, they've jumped, Brian, from the 2nd floor, 3rd floor, 4th floor. Of course, people have broken there. They've fractured themselves seriously. They've now been shifted, some to AIIMS Trauma Center, some to Max. But this is, this is how the first responders really reacted. And that's why you can see some of those, this is the exact shop. And this is where you can see that this whole, Delhi police had cordoned off this area as well. But all of those shops and that stuff that was used in the rescue operations, some of it is here. Bhai sahab, aap yahin rehte hain?
आप हमें क्या बता सकते हैं सुबह के बारे में, आपको क्या याद है? मेरा नाम अरमान मंसूरी है। मेरी शॉप होटल के जस्ट सामने है, मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से। ये जस्ट सामने है, देखिए वो जो टीन सेट है, टीन सेट है। हमारे साथ आइए। नहीं वहाँ नहीं जा सकता, मेरे पैर में कांच लगा है। आपके पैर में कांच लग गया। मैं दोनों में घुसा हुआ हूँ। तो आपकी दुकान वहाँ है, आप दुकान में थे जब आग लगी? असल में हम सुबह 7 बजे यहाँ से चले जाते हैं, नाइट में यहीं सोते हैं, 7 बजे चले जाते हैं, फ्रेश होने के बाद 9 बजे दुकान खोलते हैं। 9 बजे से पहले हमारे पड़ोसी ने फ़ोन किया जी होटल में आग लग गई है, आ जाओ। जब तक हम आए हैं तो देखा है तो मेन एंट्रेंस जो है ग्राउंड फ्लोर पर, उसमें बहुत आग थी। तो आपका क्या कितने लोग थे उस टाइम, कितने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, और क्या एग्जैक्टली आपने उस टाइम क्या करा? उस टाइम पर हमने कुछ नहीं किया। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से बंदे चिल्ला रहे थे, मैट्रिसेस निकाले, बाहर रोड पे डाले, कम से कम 7 से 8 लोग उन पे मैट्रिसेस पे कूदे, उसके बाद बाहर निकले। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर से हेल्प हेल्प हेल्प, क्यों इंडियन तो थे नहीं जो बचाओ बचाओ चिल्लाए, तो वो हेल्प हेल्प कर रहे थे, फॉरेन थे सब फॉरेन। तो मोस्टली लोग फॉरेनर्स थे और वो हेल्प बचा रहे थे। पर हमें ये बताया गया है कि जो शीशे थे वो भी नहीं तोड़ पा रहे थे, आप लोग बाहर से नहीं तोड़ पा रहे थे। लगभग जब वो कूद गए 7 से 8 लोग, उसके बाद में मेन एंट्रेंस के 2-3 शीशे बाहर से ईंट उठाकर हमने सबने तोड़े। तो मेन डोर में क्या दिक्कत थी? वो मेन डोर के बीच में आग थी, बंदा जो थे वो अंदर है, मेन एंट्रेंस पर आ गए, ना अंदर से जा सकता कोई ना बाहर से। और एग्जिट यहाँ पे कोई और था नहीं, एग्जिट एक था, उसी एग्जिट पर आग लगी हुई थी और शीशे लोग तोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि टफन ग्लास था। थे टफन थे, बहुत ईंटें मारी, बड़ी बड़ी ईंटें मारी हमने। जब 2-3 ईंटें मारने के बाद वो टफन ग्लासेस टूट, उसके टूटते साथ जो एकदम गैस बाहर आई है वो सीधा ऊपर तक आग लगती चली गई। तो जो ओनर हैं, क्योंकि आपकी दुकान यही है तो आप ओनर्स को थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। मुलाकात बहुत अच्छे ओनर है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन वो रिसेंट कुछ होना था, हो गया वो। पर आज क्यों नहीं आए? ओनर का पता नहीं, क्या पता आउट ऑफ दिल्ली हो, कहीं हो। ओके। सिर्फ इतना पता है कि ओनर है, हमें ये नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। पर वैसे क्या वो आते हैं देखने? कितनी बारी आते हैं? हफ्ते में कितनी बारी आते हैं? कभी कभी सुबह शाम आ जाते, कभी कभी वीकली आ जाते, डेली का रूटीन है, लेकिन उनका डेली का रूटीन है यहाँ आने का। बस आज किसी रीजन से वो दोनों ओनर्स में से कोई भी एक यहाँ नहीं पहुँच पाया। आप यहाँ रहते हैं, आपकी भी दुकान है, नुकसान आपको भी हो सकता था। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप आज प्रशासन को क्या कहेंगे कि ये कैसे बिल्डिंग अलाउ कर रहे हैं आप लोग के बगल में? प्रशासन गवर्नमेंट यही जाने जी, हमें क्या पता कैसे अलाउ हो रही है क्या नहीं। इनलीगल लीगल वही जान सकते हैं जी, हमें कुछ नहीं पता इसका। पर आप प्रशासन को कहेंगे क्या? क्योंकि जो मैंने कहा कि आग तो आपके पास भी पहुंच सकती थी आज। अगर फायर ब्रिगेड 5 मिनट नहीं आती, मेरी शॉप पर भी समझ लीजिए आग लगी। मेरी सामने येलो स्कूटी खड़ी है, उसका मेन फ्रंट देखना ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने हीट करके पिघला दिया ना, ऐसा है उसका। जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी, आग बुझाने के बाद अंदर जाने के लिए कोई साधन, कुछ सामान नहीं। मैंने अपनी सब बेडशीट निकाल कर उन्हें दी, कैजुअलिटी को उस पर रख कर एम्बुलेंस में डाला। कोई साधन नहीं, सामान नहीं, मत थोड़ा और बताइए। सामान नहीं था जिसमें कैजुअलिटी को रख कर हम ला सके बाहर। फायर ब्रिगेड आ गई थी, प्रशासन के लोग आ गए थे, आग बुझ गई थी। आग बुझाने के बाद हम अंदर एंट्रेंस अंदर गए, कैजुअलिटी पूरी बेहोश थी, कोई होश में नहीं था। कुछ 1-2 होंगे जो होश में थे, ये तो नहीं। और जब आप अंदर गए तो क्या आपको देखने को मिला है? फ्रंट में ही गया था, उसके बाद मैं अंदर नहीं गया। क्यों? इतना धुआं था, काला धुआं था, सांस ले नहीं पा रहे। मैं बाहर आ गया था, बाकी और लोग भी काफ़ी गए थे, 3 से 4 लोग भी अंदर गए थे। तो वो 3 से 4 लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्या बता रहे हैं कि क्या था? वो खड़े हैं फैज़ भाई हमारे, वो खड़े हैं उधर, 1-2 और हैं, आमिर भाई हैं, सब शाहरुख भाई हैं, काफ़ी लोग थे, 7-8 लोग थे, हम साथ। चलिए हम फैज भाई के पास कोशिश करते हैं जाने की। ब्रायन, what is it that you've picked up from the authorities so far on this particular case? Clearly, a similar incident happened 3 days back.
just 2 kilometers away because of an illegal, obviously unauthorized building, and the Chief Minister clearly stated that strict action would be taken against those buildings. And even after 3 days, a similar incident happens in another one of these buildings where fire gets, fire happens and 21 people, they die, and even though yes 58 people have been rescued from there, 21 people also die. And clearly eyewitnesses have been, like he's been mentioning, his t-shirt was all gone black because of obviously how he was trying to help the people out there. And there are some other people also here. We will be trying to talk to them to understand जी. what exactly happened, what Yes. is the situation there. सर आप क्या सुबह यहाँ थे? आप यहीं पे रहते हैं? आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद जी, आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैम इससे आगे मेरा घर है। हाँ, तो जब आग लगी थी तो आप आए थे? मेरा छोटा वाला भाई जो था वो यहाँ पर था, उसने घर पे कॉल की कि यहाँ पर आग लगी हुई है, जल्दी आ जाओ। तो हम लोग जैसे भाग के आए और बाकी कज़न वगैरह हमारे 10-12 लोग हम आए। तो जब तक हम आए थे तो इसके अंदर बहुत भयंकर आग थी। तो फिर हमारे फादर ने, सामने मैट्रेस की शॉप है, इसकी शॉप से मैट्रेस उठाया, उस साइड हमने मैट्रेस बिछाया और लोगों को ऊपर से जंप कराया। तो 7 लोगों को हमने ऐसे करके रेस्क्यू कराया कि ऊपर से जंप करो। एक का पैर टूट गया है लेडी का, वो सारे फॉर्नर थे, एक चाइल्ड भी था उसमें, तो वो लोग बच गए जो सेकंड फ्लोर से कूदे, 7 लोग। उसके बाद फायर एग्जिट वाली टीम आई है और उन्होंने आके जब आग पे काबू पाया है, तकरीबन आधे घंटा लगा उन्हें। उसके बाद हम दिल्ली पुलिस के साथ हम अंदर गए, सारे 10-12 लड़के, चाचा ताऊ के लड़के थे मेरे, हम सारे कज़न वगैरह अंदर गए। तो हम नीचे से ऊपर तक हम गए, तो जैसे जैसे जिस फ्लोर में हमें लोग मिले, हम ऐसे ऐसे सबको बेडशीट पे बाहर लेके आए। बेडशीट हम बाहर से शीशे लेके गए थे। आप अंदर जा पाए थे? हम तो अंदर का बताइए। बिल्कुल पूरे में स्मोक ही स्मोक था, लाइट नहीं थी। हम अपनी टॉर्च जला के जा रहे थे, थोड़ा कुछ दिख रहा, कई बार हम गिरे भी थे अंदर, तो बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे। रूम्स के डोर हमने तोड़े हैं, वहाँ से हमने लोगों को निकाला। कुछ थे जिनको हम जिंदा लेके आ पाए और बाकी 20-22 ऐसे थे जो ऑन द स्पॉट डेथ कर गए थे। तो किस स्थिति में आपको, क्योंकि कुछ जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने ये बताया कि बहुत ही बुरी स्थिति में बॉडीज मिली, बिस्तरों के पीछे लोग छुपे हुए थे। एक हमें मिले थे कपल, वो डर के हमारे वॉशरूम में घुस गए थे, हमने वॉशरूम का गेट तोड़ा है। उसके बाद वो एक दूसरे को हक करके, आई थिंक हस्बैंड वाइफ होंगे, तो वो ऐसे बैठे हुए वहीं पर और वो जल गए, जो फर्स्ट फ्लोर पे मिले हमें। और एक थे जो इंडियन थे 2, वो एक रूम के अंदर, उसका रूम का गेट जब हमने तोड़ा दिल्ली पुलिस के साथ मिलके, तो वो बेड के साइड में बैठे हुए वो वहीं पर डेड थे। एक लड़की थी जो हमें बेसमेंट में, जब हमने बेसमेंट का शटर काटा है तो ये भी लॉक था, जो हमने ये काटा है जब हम अंदर घुसे हैं, तो वो इंडियन लड़की थी जो शायद लोग बता रहे हैं कि रिसेप्शनिस्ट थी यहाँ पर। तो उसकी जब हमने हाथ पकड़ा तो उसकी खाल भी हमारे हाथ में आ गई थी। इतने बुरी तरीके से बॉडी जल गई है। और इसकी छत जो है मैम, इसका टेरिस भी जो है ना वो भी लॉक किया हुआ था, अदरवाइज लोग बच सकते थे। अगर इसका टेरिस ओपन होता तो टेरिस पर आग नहीं थी। तो टेरिस पर आप यहाँ से देख सकते हो, आप एक बार दिखा दीजिए कि वो टेरिस है इसका, वहाँ पर कोई आग नहीं है। अगर लोग टेरिस तक पहुँच जाते तो शायद एक भी जान नहीं जाती। और टेरिस ओपन भी है। टेरेस ओपन होता तो शायद फायर ब्रिगेड की ही वहां तक सीढ़ी पहुंच जाती और वहां से लोग नीचे आ जाते। नहीं, वहाँ से बराबर में टेरिस है, वहाँ से कूद सकते हैं, बट वो टेरिस ही लॉक था। मेन एंट्रेंस जो उसकी जो थी एग्जिट, वो लॉक थी, तो लोग निकल नहीं पाए। अफजल भाई देखिए, आप भी यहीं रहते हैं और जैसा कि आपने बताया कि मतलब आपको भी सदमा लगा होगा जब आप अंदर गए होंगे और आपने जिस स्थिति में, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उस टाइम पर कि जो माहौल था, जो अंदर हमारे सामने सिचुएशन थी, हम उसको वर्ड्स में बता नहीं सकते कि अंदर लोग, किसी का आधी बॉडी जल गई है, किसी का फेस जल गया, जिसमें से 10 लोग ऐसे थे मैम जिसको अंदर तुरंत हमने CPR दिया है और उन लोगों की सांस वापस आई है। 10 लोगों को हमारे कज़न वगैरह ने CPR दे के तुरंत वहाँ पर उनकी धड़कन चली है, सांस चली है, तो उनको लेके हम बाहर आए। बाहर मेडिकल मैक्स की या अदर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसके अंदर हमने उनको डाला और वो हॉस्पिटल गए। अफजल भाई सबसे पहले तो आपको सलाम, बाकी सबको सलाम, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते आज तो जितने लोग बचे हैं आज इस बिल्डिंग से शायद वो भी नहीं बचते। 21 लोग की मौत हुई है, वो नंबर दुगना तिगना हो जाता है। It would have doubled, tripled had people like them not been around today to be the first responders, to put their own lives at risk and to go inside and to save others.
And what shall we do to make the government understand, to make the authorities wake up? अफजल भाई, आज आपने जो देखा है, जैसे मैंने कहा कि एक सदमा लगा होगा, आज आप प्रशासन से क्या कहेंगे? मैम देखिए, प्रशासन इस मुल्क का ये है कि कोई भी अनऑथोराइज काम बिना प्रशासन की मदद के कंट्री के अंदर होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर प्रशासन का मिली भगत 100% है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो 6 रूम की परमिशन है और 34 रूम्स इसके अंदर वर्किंग है। तो 6 रूम का लाइसेंस होने के बाद 34 रूम इस होटल के अंदर कैसे उन्होंने हायर किए हुए थे, जिसके अंदर लोग स्टे किया हुआ था लोगों ने, जिसमें इंडियन फैमिली भी थी। अभी ये गाड़ी आप देख सकते हैं पीछे, इसके कोई नोन है, उनका मुझे कॉल आया कि अब्दुल भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। मैंने उन्हें नंबर बताया, उन्होंने कहा अग्रवाल करके फैमिली थी, मुझे नहीं पता, वो हमने हॉस्पिटल पहुँचा दिया, वो लोग जिंदा हैं नहीं हैं, तो अब वो लोग आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए। उनकी गाड़ी ये अपोजिट साइड खड़ी थी और उसकी पूरी आप देख सकते हैं हालत क्या है। ये होटल के सामने खड़ी थी इतने फासले पे, तो आप ये लगा लीजिए जब ये गाड़ी इतनी दूर पे ये हालत हो सकती है तो अंदर बिल्डिंग की क्या हालत होगी। जब हम लेके आ रहे थे तो मेरे 2 कज़न हैं, उनके पैर में कांच घुस गया है, मेरे आगे से टाइल ऐसे आके गिरी है, क्योंकि ना हमने हेलमेट लिया ना हमने मास्क लिए, हम ऐसे ही घुस गए। एक लड़का अनीस है मैम, हमारा कज़न, वो हार्ट पेशेंट है। जब पापा ने उसको बोला खड़ा मत रहा, अंदर बचा लोगों को, तो वो अपनी टी शर्ट को ऐसे करके ऊपर नोज कवर करके ऐसे ही घुस गया, हार्ट का पेशेंट होने के बावजूद। इंसानियत यही है कि आदमी हो किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस ये दिखा कि लोग परेशान हैं और हम एज अ इंडियन, एज अ मुस्लिम, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे सामने लोग कूद रहे थे, तो हमने नीचे मैटर लगा, लोग कूद रहे तो हमें तरस आया, तो हमने ना आग देखी ना धुआं देखा, हम ऐसे ही घुस गए। क्योंकि हो सकता है अगर हम अपना प्रोटेक्शन करते कि हाँ भाई पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हेलमेट लें, मास्क लें, तो हो सकता है जिन लोगों को हम बचाने में कामयाब हो पाए उन्हें भी ना बचा पाते। Afzal bhai, thank you so much for that detailed explanation of what has gone wrong today. If we don't wake up today, trust me, 1 month back, we'll be back later in some other colony of Delhi. The exact same thing will happen. And I just want to leave it at that. Uday, back to you. Absolutely. Well, thanks indeed for